कैसा है कि अभी ज्योमेट्री में काफ़ी फॉर्मूले एंगल का जो है वैल्यू, पहले तो ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया। फिर आप how you will remember, there is so many angles are there, like sine minus theta what, cos minus theta what, sine 90, 90 plus theta will what, so many things are there, sine 270 plus theta plus what। हम एक अच्छे तरीके से आपको एक इसमें हम एक बताते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए। वो तो मैं निकालने के लिए बताऊंगा कैसे याद निकाला जाता है, बाकी मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि ये जैसे ये एक्स एक्सिस से काट लीजिए इसको, दिस विल बी y एंड y एक्सिस, राइट। when a rotating line rotate one times, it's become 360 degree like this, 360 degrees. This is called first quadrant. This is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. This is the quadrant, right? अब साइन माइनस थीटा कैसे होगा और इसको क्या एंगल होगा, इसको जल्दी बात, क्योंकि इतना आप याद, there is so many things, if you will calculate everything you will find it will be maybe 200 or more than 200, so you cannot remember all those things in short। तो तरीका क्या है कि अब ये देखिए, ये रोटेट कर रहा है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, बताता जा, फिर ये एंगल है, ये एंगल है, ये 3x and xy, this is theta। if line will come to this line, total angle will be 90, but little bit line stop here only, so what will be this angle, 90 minus theta, ये फाइंड आउट करना है। इसमें चेंज इसमें चेंज and here is no changes, changes means what do you mean by changes means sine will be changed in cos will change in sine, tan will change in cot will change tan, sec will change cosec, or cosec will change in sec. This is the changes. No changes means sine will be sine, cos will be cos, like that। Sin 90 minus theta, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta
sin 90 minus theta. This line के लिए, for this line, P Q P Q R S T U V like that. Just imagine the angle and it lies in this circle like this. Sin 90 minus theta. Where it is? It is near to the y axis. Huh? This will change. Sin will change cos. Huh? Cos theta. Cos 90 minus theta. Sin theta. Tan 90 minus theta. Cot theta. Okay. After that, you have to know what will be the sign exactly. So this is based on this formula. A S T cos. See, add sugar to coffee. If angle is lies in first quadrant, whatever trigonometric ratios is there will be positive only. This all will be positive. Understand? And whenever you want to find out cosec 90 minus theta, check like that. You can convert everything accordingly. But in second case, where is the second case? Line will go in second quadrant. This is 90. This is the theta. Then you have to find sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, right? Tan 90 plus theta. This is near to the y-axis, so it will change. Sin will be changed in cos theta, cos sin theta, tan cot theta. Then we have to focus what will be the sign, either प्लस और माइनस, प्लस होगा कि माइनस होगा. ये जो एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? दो पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. इसमें साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा. तो साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. ये जानना है, इस तरह से जानना है, क्योंकि याद रख कर करके विल बी रिमेम्बरिंग बाय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, it will be vanished and nothing will be in your mind. Okay, in 90 plus theta, two things has completed. And second sin 180 plus theta, cos 180 plus theta, tan 180 plus theta, and sin 180 minus theta, cos 180 minus theta, or tan 180 minus theta. Again, sin 270 plus theta, cos 270 plus theta, tan 270 plus theta. एक बार में ये हम सब बता देंगे, आपको याद हो जाएंगे. एक बार देख लें बढ़िया से, है ना. sin 180 plus theta, when line will rotate and it will come like this or this. ये कैसा हो जाएगा? 180 plus ये थीटा. And where is the angle? Angle is in third quadrant.
No changes. No changes. Just remember this. This is no changes. This is no changes. Huh? This is the changes. This is the changes. When angle near to the y-axis, either left or right, changes. When angle is just near to the x-axis, x-axis, no changes, either up or down. This is no changes. Just remember this. You have to remember these two things. This is the basic things. Okay. Cos 180 degree theta, cos theta, tan theta. An angle is where it is. Where it is? It is in third quadrant, where is sine, all sine 10. 10 positive, all negative. 10 positive, all negative. And 180 minus theta. Line is coming up to here and again it revert here. Theta. What will be this line? 180 minus theta. ये लाइन पर है, एक्स डायरेक्शन पर है. नो चेंजेस. साइन थीटा का साइन थीटा. साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा. cos x और cos theta, cot theta. And what will be the sign? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. साइन पॉजिटिव है, ऑल साइन 10 cos. साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव. ओके. अब आपको बच गया कौन सा एंगल बच गया? आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखिए, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, याद नहीं करना है. साइन 360 प्लस थीटा, साइन कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा. हो गया. ये साइन once a rotating line completed one cycle and it lies after completing the one cycle on in a circular path, and again it goes in first quadrant by making the theta angle. It is 360 प्लस थीटा, यानी इधर है. एंगल इज हियर ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट. नो चेंजेस. साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, नो चेंजेस. You have to focus on sign. What will be the sign? First quadrants, all positive, all positive, all positive. And when line stop up to this, if line is rotating like this, it become 360 degree. But line is lying here only, just below theta, below. Yani sin 360 minus theta, tan 360 minus theta, or cos 360 minus theta. What will be the value? No changes. Sin theta, cos theta, or tan theta. And I will ask, what will be the sign? Sign will be all sin 10 cos. Cos positive, बाकी सब negative. This is the way you can memorize the formulas. Okay.
और बेसिक सवाल को कुछ कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला सीख लीजिए, सवाल बनाना आसान है। सवाल, if you are solving the problems, it's very easy if you have all the formula in your mind. Otherwise, it will become very lengthy, difficulties, you cannot understand everything. Sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin A minus B, sin A cos B plus cos A sin। इसको मिटा दे। A प्लस बी, सपोज A प्लस बी को हम मान लेते हैं लेट A प्लस बी इक्वल टू सी और A माइनस बी इक्वल टू, by adding 2a plus c plus d, a equal to c plus d by और b इक्वल टू c माइनस डी बाई, ये हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, ये माइनस है सॉरी, इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये और ये कैंसल, टू साइन ए कॉस बी, पुट द वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू सी, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, ये फॉर्मूला निकल गया एक। ओके, इसका यूज कैसे होगा बताऊंगा, थोड़ा सा हड़बड़ाए नहीं ना, कीप पेशेंस, आई विल शो यू हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर अस एंड हाउ you people will know where it is to be used for finding out what. So this is the, and from first minus second, sin a plus b minus sin a minus b equal to 2 cos a sin a plus b equal to sin d 2 cos c plus d by 2 sin b by, ठीक है, राइट। हो गया। अब चले आए कॉस की तरफ, चलें कॉस ए प्लस बी, 4 फॉर्मूला है, उससे और भी निकलेंगे। फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे निकलता है वो देख लेंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, again adding cos a plus b plus cos a minus b, ये कैंसल, 2 cos a into cos b, cos a plus b c cos b, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2,
फॉर्मूला निकल रहा है। एक बेसिक, इफ यू आर नोइंग द वन बेसिक थिंग्स, यू कैन, if your mind is functioning here and there, left, right, and to and fro, you can find out so many formulas by using 1 2 3 here and there, putting substitution like that. Okay. Sin A plus B is equal to what? Sin A into cos B plus cos A into sin. If A is equal to B, तो sin A plus A, sin A cos A plus cos A sin A. Sin 2A is equal to 2 sin A into cos A. हाँ? इसको और आधा कर दे अगर, क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई, ठीक है। लेकिन इस तरह के फॉर्मूले में cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin cos a और b, तो cos 2a cos a into cos a तो sin a into sin a, ये हो गया cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, सॉरी साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इसको अगर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अब कॉस ए अगर निकालना है इससे, तो ये इधर से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए cos 2a माइनस 1 और cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। हाथ चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए और दिमाग चलना चाहिए। तो सारे कुछ, अब क्यों हम ऐसा बता रहे हैं, कुछ हम सोच रहे हैं तभी बता रहे हैं, ठीक है। एक 9th में बड़ा फेमस फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला, और हम लोग बराबर यूज करते थे उसको। अगर 3 साइड किसी भी ट्रायंगल में दिया रहे, किसी भी साइड का 3 साइड दिया है, तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज करिए ये ए है, बी है और सी है, इसका एरिया निकालना है। फार्मूला इसमें यूज होगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये फार्मूला, सम फार्मूला एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से हम बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से बताते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक से बताते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक से बताएंगे, दोनों ऐसा कर लेंगे, है ना। तो एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसको ये जो है h है, ये C का करस्पॉन्डिंग C हो गया, A का करस्पॉन्डिंग A हो गया, B का करस्पॉन्डिंग B हो गया, ठीक है। तो BD को मान लेते हैं x, तो CD हो जाएगा A माइनस x। BD को हमने x मान लिया, CD को मान लिया x। अब इन्हें ट्रायंगल
In triangle ABD equal to AD square is equal to x square plus h square. H square AB square is equal to h square plus h square. AB means what? AB means C square h square plus x square. H square is equal to C square minus x square. Equation 1. यही है ना. In a triangle ABC, AC square CD square plus AD square. AC square मतलब AC means B square, CD H square और A minus X का होल स्क्वायर. अब H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A माइनस X का होल स्क्वायर. ये दो इक्वेशन एक बार बढ़िया से एक बार देख लीजिए. जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट एग्जैक्ट है. H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A माइनस X का होल स्क्वायर. दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन इज C square minus X square like that. Okay. From 1 and 2 second, 1 and 2 second, C square minus X square is equal to B square minus A minus X का होल स्क्वायर. B square minus A square plus 2AX plus minus X square. Minus X square cancel. ठीक है. टू ए एक्स इक्वल टू C square minus B square plus A square. और x इक्वल टू what? C square minus B square plus A square बटे 2A. H स्क्वायर का वैल्यू उधर कितना निकाला, क्या निकला है? H का वैल्यू निकाला है H स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. X का वैल्यू क्या है? ये है ना. तो C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे 2A का होल स्क्वायर बराबर. और H का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे हम तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर 2A पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है.
अब ये कैसे आ रहा, कैसा आ रहा है ये आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब एलसीएम इसका निकाल लेते हैं पहले। गिर गया था। एलसीएम इसका थोड़ा देखिए बेसिक चीज का, you should must have the knowledge of some basic things, otherwise मैथमेटिक्स आएगा नहीं। h इक्वल टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 2a, बराबर। और ये आप इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर उसको लिखेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। तो 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया बटे 2a, ऊपर में अंडर रूट। अब आप इसको देखिएगा, ये और ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल, इसको ऐसा, फिर इसको देखिए आप, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर है ये वाला और ये वाला, हुए। इसको आप तोड़ लीजिए जरा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस बी, फिर ए प्लस सी माइनस बी, फिर बी प्लस ए माइनस सी, फिर ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस सी, ये 2a क्लियर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, इधर भी इसको ध्यान में रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 2s, ठीक है। ये हो जाएगा 2s माइनस 2b, ये हो जाएगा 2s माइनस 2c,
ये हो जाएगा 2s माइनस 2a बटे 2a अंडर रूट। अब देखिए कितना 2 निकल रहा है, ये 2 निकल रहा है, s फिर s माइनस a निकल गया, हो गया s माइनस b निकल गया, फिर s माइनस c निकल गया। और कितना 2 निकला, एक 2 ये निकला, एक 2 ये निकला, एक 2 ये निकला, और एक 2 3 4 एक 2 और, इतना 2 निकला है बाहर अंडर रूट बटे 2a। इसको लेकर के इधर लेकर के आते हैं। अब ये ब्रिक में अब कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। दो दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a। 16 का अंडर रूट कितना, 4, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये 4 बाहर आ गया, 2a, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी हो गया 2 इंटू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। हो गया, ये निकला बटे में a। और ट्रेंगल का जो एरिया होता है ABC इक्वल टू हाफ बेस BC इंटू हाइट h। हाफ BC कितना है, a है, और हाइट कितना निकाला है आपने, 2s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 2 कैंसल, a भी निकाला जाता है a। टोटल फॉर्मूला आपका आ गया s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये फॉर्मूला आपका बन गया। इसी को हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। बवंडर मचा के रखा है लोगों ने, कहाँ से आया कहाँ से आया। इसको थोड़ा देख लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाऊंगा। एक तो तरीका ये हो गया प्रूफ करने के, तरीके एक हो गए ना भाई। अब एक तरीके तो ये प्रूफ हो गए, थोड़ा ठीक है देख लीजिएगा आप लोग तरीके से, पॉज कर करके। अगर कुछ गलती सही अगर होगी तो मुझे माफ करना भैया, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती हो सकती मेरे से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, कोसाइन का फॉर्मूला होता है कि ए बी सी, ठीक है। अगर ये बी निकालना है तो cos b
इक्वल टू ये बी है तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिखिए। बचा कितना, ए और सी बचा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, फिर कॉस बी अगर निकालना है कॉस सी, ये सी है माइनस सी स्क्वायर लिख लीजिए। बचा कितना, ए स्क्वायर बटे 2ab। फिर कॉस ए निकालना है माइनस ए स्क्वायर को इधर लिखिए। बचा के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2b। ये फॉर्मूला समझ गए कि नहीं, इसको प्रूव करना है। प्रूव करना है बताएं मुझे, लेकिन कैसे बताएंगे आप, तो बताएंगे तो मैं सुनूंगा कैसे, तो कल सुनेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, एक उसमें जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है, ज्योमेट्री से कैसे प्रूव हो सकता है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला विल बी प्रूव्ड बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री मेथड। सी area of triangle ABC equal to half into BC into AD। in triangle ABD is equal to sin B AD बटे AB। AD H और AD AB C sin B। तो हाफ इंटू BC AC sin B। यहाँ भी याद रखें, हाफ इंटू AC या भी रखिए BC, बचा गया साइन C, फिर बचा क्या, हाफ AB साइन C। ये सब एरिया का फॉर्मूला है। अब तीनों को बराबर कर दें, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हाफ AC साइन B इक्वल टू हाफ BC साइन C, हाफ AB साइन C, हाफ कैंसल AC साइन B, BC साइन C और AB साइन C। डिवाइडिंग बाय ABC, ABC से डिवाइड, AC खत्म हो गया तो साइन BC खत्म हो गया, साइन C बाय C। AB है ये, AB सॉरी, साइन C साइन B बाई B, इधर हो गया AB खत्म हो गया, साइन C बटे A, C। नेट फॉर्मूला क्या है इसका, नेट फॉर्मूला जब आएगा इसका तो आप इसको देखेंगे कैसा आएगा। ये आ जाएगा साइन B बटे साइन A बटे साइन C बटे C। इसको उलट दिया, यह साइन A, B बटे साइन B, C बटे साइन C। ट्रायंगल का साइन फॉर्मूला कहलाता है, ट्रायंगल का साइन फॉर्मूला कहलाता है। अब इसी में से कुछ न कुछ हम जोड़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का वो वी कैन फाइंड आउट द हेरोन्स फॉर्मूला बाय यूजिंग। ये आएगा नहीं, मैं सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग ए नॉलेज टू जस्ट नो
how it has been derived. Okay, nothing else. I don't have anything in mind that I have to give some puzzleness and hot temperament so that you become angry on me. गुस्सा होने के लिए मैं पढ़ा देता हूँ भाई, गुस्सा मत होइए, मुस्कुराते रहे। तो अभी क्या क्या बोला था मैंने, ट्रायंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी साइन सी, हाफ इंटू ए बी साइन सी। साइन सी को लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपने अभी तक क्या सीखा था उस समय, मैंने क्या बताया था, याद करिए, याद करिए कि कॉस 2a इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका हाफ, इसका हाफ, हाँ? इसको अगर ये करेंगे, इसको अगर और आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बाई 2 बाई, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, फिर ये हो जाएगा इससे अगर साइन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस है, फिर ये साइन ए बाई 2 अगर निकालेंगे 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट, खत्म। और तो साइन का वैल्यू हो गया और इसी में से कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, तो इसको तोड़िए, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। अब इसके इसलिए हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, इधर हो जाए कॉस ए बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला को हम यहाँ रखने वाले हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आप समझ लें ऐसे कर करके, हाफ ए बी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई का अंडर रूट, ठीक है, यही है ना। अब कॉस ए का वैल्यू कितना निकालना था हमने, कॉस ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था, हाफ ए बी 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस, ये सारे फॉर्मूले को तरफ ले लेते साथ में, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और 2 ए जा 4, ये हो जाएगा हाफ ए बी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट। कॉस ए का वैल्यू कितना निकलता है वो मैंने बताया था,
आई हैव जस्ट टोल्ड यू जस्ट बिफोर कॉस ए का फॉर्मूला अगर निकालना है तो हाफ इंटू ए बी 1 माइनस कॉस ए मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc का होल स्क्वायर, ये 4, ये अंडर, ठीक है। हाफ ए बी, ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसका 1 को भी अंडर रूट ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। 2bc आ जाएगा नीचे, टू बी सी आ जाएगा नीचे, तो 2 दूनी 4, 4 इसको पहले आकर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 4, इसको यहाँ तक ले लेते पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू ए बी, ये 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 4bc का 4bc का अंडर रूट कितना, 2bc इंटू 2 इंटू 4, ये अंडर रूट ऊपर वाले को रहने दो। कॉस ए निकाला था, कॉस ए साइन ए ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर साइन ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर हमने साइन को तोड़ा था, साइन किसमें, साइन ए को, साइन ए था, तो इसका मतलब हो गया कि 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो हाफ फॉर ट्रायंगल हो जाएगा BC साइन बी साइन ए हाफ, यानी इसका मतलब यहाँ पर BC नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर BC होगा, BC यहाँ पर BC, हाँ याद रखना, मिस्टेक हो गया BC, ठीक है। अब मुझे लगता है कि सब करीब में आ गया है कहानी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू 2BC प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये हो गया प्लस बी, फिर 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर हो गया 8bc 2 4 नहीं होगा ना, √2 इंटू √2 2 होगा ना, 2 √2 का 2, ठीक है। तो 4bc है, 4bc अब ये अंडर रूट हो गया,
फिर उसी फॉर्मूले पे आ गया, ये जो पुराना जो फॉर्मूला था, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अंडर रूट 4bc, हाफ bc, ये b प्लस सी प्लस ए, और ये a माइनस बी प्लस सी प्लस ए, और b प्लस सी माइनस ए, फिर a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, 4bc। अब इसी तरह से देख लें, आगे पुराने पुराने इस पर आ गए अभी, तो हाफ bc, ये 2s माइनस 2a, फिर 2s माइनस 2b, फिर 2s माइनस 2c का अंडर रूट 4bc। ठीक है, कितना 2 2 4 जो 16 का 16 का अंडर रूट बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? 16 का अंडर रूट बाहर निकलेगा, कितना बचेगा? 16 का अंडर रूट बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? 4। तो ये BC इंटू 4 S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इधर हो गया 4bc कैंसिल, लास्ट में हो गया S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये कंप्लीट खत्म हो गया। कितना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितना 59 मिनट का। चलो अभी आज का प्रोग्राम इधर ही समाप्त करते हैं, कल फिर लगेंगे। अभी लाइव में नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम ऑन लाइव, आई विल ट्राई टू prepare the video at our color panel is just on the way, and we are hoping that it will be in our hand within this week, so the quality of education will be all of a sudden will changed, and you people will be happy to see the content. Don't worry, don't worry. Thank you.